Hello students. Now we have our numerical 5.21. So what do we have in this numerical? A stone of mass 0.25 kilogram tied to the end of a string is whirled around a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can whirl around if the string can withstand a maximum of tension of 200 Newton? So let's do this numerical. What we have, suppose we have a stone of a given mass m is equal to 0.25 kilogram, and this stone is made to revolve around a center by the help of a string. Let O be the center, and this is the stone of mass this, and radius is given r is equal to 1.5 मीटर. So हमसे पूछा गया है what is the tension in the string. इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा वो हमसे पूछा गया है. तो डियर स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व द गिवन कंडीशन. टेंशन जो वर्क करेगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह. सेंट्रीपिटल फोर्स जब टेंशन होगा स्ट्रिंग में दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड डियर स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? mv square over r. Okay, so let assume the equation number 1, we have the value of m, we have the value of r. Now we have to find out the value of v. So dear student, since omega is equal to 2 pi n, this is the formula of angular velocity 2 pi n, where n is the frequency round per minute, revolution per minute. तो 2 pi n की वैल्यू कितनी है? 40 राउंड पर मिनट यानी 60. तो it will become round per second frequency. So this will become 2 by, that is 4 upon 3 pi radian per second. This is the value of omega. Also v is equal to r omega. This is the formula, this is the relation between linear velocity and angular velocity. V is equal to r omega. So what we have the value of r 1.5 meter. 1.5 meter and omega की वैल्यू कितनी है? 4 by 3 pi. So this will become 2 pi. 1 from 1.5 make 3 2 and this 2 make 4 2. So we have the 2 pi meter per second. So now we have the value of m, we have the value of r, and we have the value of v. So equation 1 become, dear student, equation 1 become t is equal to m की वैल्यू 0.25, v स्क्वायर, v की वैल्यू 2 pi का होल स्क्वायर, and we have the value of r 1.5. So after solving all this data we will get 6.6 Newton. When we solve all this data, dear students, we will get 6.6 Newton. So this is the tension in the string. Okay, one more thing we have asked. What is the maximum speed with which the stone can be whirled around the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? हमसे पूछा गया है इस स्टोन को कितनी तेजी से घुमाया जाए कि जो स्ट्रिंग है वो ना टूटे, और ये स्ट्रिंग कितना
टेंशन एक्सटेंड कर सकती है 200। तो लेट डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। दिस इज टू बी द फर्स्ट पार्ट जिसमें आपसे टेंशन पूछा गया। सेकंड पार्ट में हमसे वेलोसिटी पूछी गई है कि इसको किस वेलोसिटी से हम टर्न करें कि जो टेंशन है वो 200 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। आप समझ गए? हमसे पूछा गया है स्टोन को कितनी वेलोसिटी से टर्न करें कि जो टेंशन है वो 200 से ज्यादा ना पहुंचे। तो अगेन T is equal to mv स्क्वायर ओवर r। दोबारा एक फॉर्मूला लगाएंगे। T हमें गिवन है 200, m 0.25, v हमसे पूछा है और r 1.5। v स्क्वायर इज इक्वल टू 200 1.5 upon 0.25। When we solve this data, we will get 1200. V is equal to root 1200. This will become 20 root 3, and root 3 की वैल्यू रखने पर this will become 34.6, nearly equal 35 meter per second. So dear student, this is the required solution of the given numerical. In the next numerical 5.22, dear students, what we have, it is related to the previous numerical. Actually, if in example 5.21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correctly describe the trajectory of the stone after the string base? देखिए इसमें पूछा गया है कि अगर हम स्टोन को इतनी तेजी से घुमाएं, यानी वेलोसिटी इतनी ज्यादा कर दें कि स्ट्रिंग क्या हो जाए, टूट जाए, तो जैसे स्ट्रिंग टूटेगा तो जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकली भी ये आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तक हम किसी स्टोन को स्ट्रिंग में बांध के ऐसे रोटेट करते हैं वो घूमता है, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो एक सीधी डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज द स्ट्रिंग ब्रेक the stone flies off in the tangent direction of the circular path। तो जैसे स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक होगा, तो वो जो स्टोन है वो अपने सर्कुलर पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा निकल जाएगा। एज स्ट्रिंग ब्रेक, तो जैसे स्ट्रिंग टूटेगा वो सीधा कहां चला जाएगा, इन टेंजेंट डायरेक्शन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आपको इन दिस न्यूमेरिकल यू हैव द 3 ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। Dear students, in the next numerical 5.23 we have some statements, or we have to justify and clarify the given statements. So let's do one by one. So in the first statement, what we have, a horse cannot pull a cart and run in empty space. हमसे कहा गया है कि जो एक हॉर्स है वो स्पेस में किसी गाड़ी को खींच नहीं सकता और ना ही वो रन कर सकता है। तो बताइए ऐसा क्यों होगा। तो वेरी सिंपल, चलने का जो प्रोसेस होता है, वॉकिंग का जो प्रोसेस होता है, ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से
अर्थ यानी सरफेस पर एक फोर्स लगाते हैं और उसी के अपोजिट अर्थ हमें एक फोर्स देता है जो हमें मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी बेसिकली हम अपने फोर्स से नहीं चलते हैं, हमें चलने के लिए कहीं और से फोर्स चाहिए और वो फोर्स हमें कौन देता है, सरफेस। हम अपना फोर्स सरफेस पे अप्लाई करते हैं और बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ सरफेस हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देता है और वो जो सरफेस से हमें फोर्स मिलता है वो हमें चलने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर सरफेस नहीं है तो हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा एंड वी कैन नॉट मूव। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फॉर वॉकिंग we need reaction by surface। चलने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी सरफेस का रिएक्शन चाहिए। since in space we don't have any surface, स्पेस में आपके पास क्या नहीं होगा, कोई सरफेस नहीं होगा। hence a horse can't pull a cart and run। तो डियर स्टूडेंट, चलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रिएक्शन चाहिए जो हमें सरफेस से मिलता है और स्पेस में वी डोंट हैव द सरफेस, तो दैट्स व्हाई जब सरफेस नहीं होगा तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिल पाएगा और वहां कोई भी चीज मूव नहीं कर पाएगी। In the B part of this question we have the statement, passenger are thrown forward from their seat when a speedy bus stops suddenly। So dear student, ये चीज हमने पढ़ी थी in the theory video related to the topic inertia कि when a bus is in motion तो उसके अंदर कौन सा इनर्शिया होता है, मोशन का इनर्शिया होता है और उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं they also possess the inertia of motion। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है जो किस पर अप्लाई होता है, बस पर। तो बस तो क्या हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन जो पैसेंजर होते हैं वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन में बने रहते हैं जिसकी वजह से वो आगे की तरफ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो यही हमसे पूछा गया है। तो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज पैसेंजर थ्रो फॉरवर्ड ड्यू टू inertia of motion। Inertia of motion when moving bus stop suddenly। This is the answer of the given question। In the C part of this numerical what we have, हमसे कहा गया it is easy to pull a lawn mower than to push it। यानी हमसे एक तरह से पूछा गया है कि जो पुल करना है वो ज्यादा इजी होता है बजाय पुश के। तो लेट्स सी द गिवन कंडीशन डियर स्टूडेंट्स। सपोज this is the lawn mower, okay, so or you can in a circular shape or you can take it in a rectangular shape, what you wish। suppose ये हमारा surface, this is to be our surface and on that surface we have lawn mower, this is the lawn mower। so in the initial condition when जब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड और
ये लॉन मूवर अर्थ को अपना वेट mg अप्लाई करेगा तो अर्थ इसको क्या देगा, एक रिएक्शन देगा। ओके, अब अगर हम देखिए, ये हम लेते हैं पुल केस एंड दिस इज पुश केस, ठीक है। तो हम यहां इसको पुल करेंगे। पुल करने का मतलब क्या होता है, फोर्स को हम अपनी तरफ लेके आते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यानी ये हमने इस पर क्या लगाया, फोर्स, और ये किसका काम करेगा, पुल का काम करेगा, ठीक। और पुश का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाएंगे। दिस इज पुश, ओके। चलिए, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट when we pull the object and when we push the object. So in that case we have a, like this is angle theta, this is angle theta, there must be an angle between the force and the earth surface. So what we have, this force is resolved into the two parts, F cos theta and in vertical direction F sin theta. This force is resolved into two components, cos component and vertical component. Similarly, this force also resolved into two components. The direction of force is towards the earth surface. So this must be the angle theta. So this is the direction of force. So this will resolve F cos theta and in vertical direction F sin theta. This is the direction of F cos theta. So both the cases, आपको दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। So the direction of friction is always opposite to the motion. So this is to be the direction of friction. Okay, this is the direction of motion, and when we push, so this is the direction of friction. चलिए, now what we have in the given situation, friction balanced by the F cos theta in both the cases. Number one, friction balanced by F cos theta. हॉरिजॉन्टल में इधर क्या है, फ्रिक्शन, और हॉरिजॉन्टल में इधर क्या है, F cos theta, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सेम थिंग हैपन इन दिस सिचुएशन आल्सो, फ्रिक्शन और F cos theta अपोजिट है, दे विल बैलेंस टू ईच अदर। फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय F cos theta. तो दिस इज द वर्टिकल फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट, इन हॉरिजॉन्टल इधर देखिए, वर्टिकल में क्या है, R और F sin थीटा, और नीचे क्या है, mg। तो इन वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो हम लेंगे R प्लस F sin थीटा प्लस वो इज इक्वल टू mg। तो यहां से R कितना हो जाएगा, mg माइनस F sin थीटा। इधर देखिए वर्टिकल में क्या होगा, इन वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड में कौन है, R, और डाउनवर्ड में कौन है, mg प्लस F sin थीटा। तो प्यारे बच्चों, इस केस में R क्या है, mg माइनस F sin थीटा, और इस केस में क्या है, R
mg प्लस f sin थीटा। तो रिएक्शन किधर ज्यादा है, पुल केस में या पुश केस में? तो आप कहेंगे रिएक्शन जो है इस केस में ज्यादा है। तो जिस केस में रिएक्शन ज्यादा होता है, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है कि कोई भी चीज कितनी हल्की महसूस होती है या कितनी भारी महसूस होती है। ओके, कोई भी चीज हमें जितना रिएक्शन देता है वही उसका क्या होता है, वेट होता है। जैसे हमने लिफ्ट के केस में पढ़ा था कि अपवर्ड मोशन में g प्लस ए हो जाता है और डाउनवर्ड मोशन में g माइनस ए, इसलिए अपवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट हैवी हो जाते हैं और डाउनवर्ड मोशन में लाइट हो जाती है। तो सिमिलरली कोई भी चीज भारी है या हल्की है ये डिसाइड कौन करता है, रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन ज्यादा है और यहाँ रिएक्शन क्या है, देखिए माइनस है। mg में से क्या हुआ, जो ये लॉन्ग मूवर है उसका वेट कितना है, mg, लेकिन उसमें से भी क्या f को साइन थीटा क्या हो चुका है, माइनस। लेकिन यहाँ mg में f साइन थीटा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। यानी हमें जो महसूस होगा यहाँ mg में से कुछ कम महसूस होगा और यहाँ mg में से कुछ ज्यादा महसूस होगा। तो सिंस कहाँ लिखें, यह लिख लेते हैं, सिंस रिएक्शन ऑफ पुल, ये किस चीज का रिएक्शन है, पुल का। सिंस रिएक्शन ऑफ पुल इज लेस देन, ये क्या है, पुश, रिएक्शन ऑफ पुश, हेंस पुलिंग इज इजी देन पुश। यानी किसी भी चीज को पुल करना ज्यादा आसान होता है बजाय उसको पुश करने के। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कीजिए या पुश कीजिए, तो जब आप इसको पुल करेंगे तो उसका वेट कम महसूस होगा, लेकिन जब आप इसको पुश करते हैं तो उसका वेट ज्यादा महसूस होता है। तो जब भी लाइफ में मतलब कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना पड़े तो आप इसको पुल कीजिए बजाय पुश करने। In the last part of this numerical, what we have, a cricketer move his hand backward while holding a catch. Actually, dear student, ये चीज हम already अपने थ्योरी के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक क्रिकेटर, suppose we have a cricketer which is about to hold a catch, तो हमसे कहा जाता है कि ये जो क्रिकेटर है ये अपने हाथ को कैच करने के बाद, यानी बॉल जब इसके हाथ में आ जाता है, when he caught the ball, उसके बाद भी ये अपने हाथ को थोड़ा सा लोअर या हैंड मूव बैकवर्ड। ऐसा क्यों करता है? तो वो ऐसा इसलिए करता है, प्यारे बच्चों, लेट आंसर द सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन एक बार और बताते हैं। सिंस फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स का इफेक्ट उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स का इफेक्ट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो बाय लोअर हिज हैंड, अपने हाथ पीछे करके, बाय लोअर हिज हैंड या बाय मूव हिज हैंड बैकवर्ड, क्रिकेटर इंक्रीज द टाइम। जो क्रिकेटर है वो क्या करता है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो टाइम बढ़ने से फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम, ड्यू टू विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स गेट डिक्रीज। ठीक है, जैसे बॉल हाथों में आता है तो बॉल हाथ पर एक फोर्स लगाता है, तो वो क्या करता है, मोमेंटम में चेंज होता है, लेकिन उस मोमेंटम में जब चेंज होगा उसका टाइम क्या होगा,
इस बात पर भी फोर्स डिपेंड करता है। तो हाथ को नीचे लाकर वो क्या कर देता है, टाइम पीरियड बढ़ा देता है, जिससे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है और उसको हाथों को उतनी चोट नहीं लगती। So for providing the safety to their hand, that's why the cricketer lower their hands in the backward direction even after catching the ball. So this is the given explanation of the question.